Assalamu alaikum students. I am Ulfat Gulzar. Today I am going to discuss a topic on family nursing and home nursing. So today I will tell you what is family nursing and what is home nursing. As you know, the modern trend is changing from hospital to home. Now the hospital stay is decreasing in order to prevent infections and hospital stay. So I will tell you I will discuss with you instead I will discuss with you what is the family nursing and home nursing. Family, as the word itself indicates, family means family. As you know that family is the important component of the society which comprises of many members. For example, family contains males, females, children, older adults. And nursing, you know, is a profession, is a professional care by which we are assisting, we are giving directive care, or we are giving education to the people, to the families, to the individuals, to the community. So now I will first tell you about what family is, what family means. First of all, we will discuss family nursing and home nursing. As I already told you, sorry, family nursing is provision of care of families and family members in health and illness situation, thinking about and working with families, identify healthcare problems of the family as a whole. And home nursing is specialized nursing care, while specialized nursing care services in the home, healthcare settings, visiting sick people at their home, help clients who are recovering after a hospital stay to remain safely at home and avoid unnecessary hospitalization. सो फैमिली नर्सिंग, जैसे मैंने कहा कि प्रोविजन ऑफ केयर, ऑफ फैमिलीज़ को केयर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, चाहे हेल्थ हो या इलनेस सिचुएशन हो। हेल्थ के रिगार्डिंग भी हम हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, अगर इलनेस है तो हम कैसे हेल्थ को रेस्टोर करें, या फैमिलीज़ के साथ काम करना, उनको सिखाना, उनको बताना. सो हेल्थ, family health nursing and home nursing is one and the same, but in family nursing we can give care, we can give education, we can help, we can support, but in home nursing we are giving some specialized care, some specialized procedure is done. So in family nursing, family members are involved. In home nursing we are giving care and also we are supervising the family members how to provide care. For example, uh, we have to do some procedure at the family, will demonstrate that procedure in फैमिली के सामने उनको दिखाएंगे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सो दैट उनमें वो कैपेबिलिटी आ जाए कि वो खुद से वो काम कर सके. और होम फैमिली नर्सिंग में हम एजुकेशन फॉर एग्जांपल देते हैं किसी चीज़ के बारे में, ताकि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ रिगार्डिंग द हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन, अवेलिंग ऑफ हेल्थ सर्विस, ये सब इम्प्रूव हो जाए इसको इम्प्रूव करने के लिए. सो नाउ आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली. It refers to two or more individuals who depend on one another for emotional, physical, or financial support. A social group characterized by common residence, economic cooperation, and reproduction includes adults of both sexes, at least two of whom maintain a socially approved sexual relationship and one or more children. So मैंने आपको पहले ही बोला, फैमिली का मतलब होता है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग रहते हो जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वेदर इट इज़ इमोशनली, फिजिकली फाइन. जैसे हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हमें जब हम छोटे होते हैं पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनका होता है. इमोशनली हम उनके साथ, अगर हम बीमार होते हैं हमारा केयर करते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल, इमोशनल, ये एक फैमिली में होते हैं. एक जो मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि जो फैमिली होती है उनका कॉमन रेजिडेंस होता है, उसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन,
constituting a single household, interacting and communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common culture. मतलब फैमिली वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जिसमें एक साथ जो लोग रहते हैं उनके बीच में कोई टाई होता है, कोई रिश्ता होता है, चाहे वो मैरिज का हो, जैसे हस्बैंड और वाइफ में हो, तो चाहे वो ब्लड का हो, जैसे मदर चाइल्ड में होता है, ब्रदर सिस्टर में, चाहे वो अडॉप्शन का हो, जैसे किसी के पास बच्चा नहीं होता है या कोई मैरिज नहीं करता है तो वो किसी को अडेप्ट करके उसको पालता है, पढ़ाता है, लिखा, लेटर ऑन वही उसकी फैमिली बन जाते हैं। कंस्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड, वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सोशल रोल्स उनके जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव सोशल रोल्स प्ले करते हैं, भाई का, बहन का, माँ का, बाप का। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट रोल्स, different persons in a family, different individuals and with the different roles. So next I will tell you regarding the health. What is health? For knowing the family health, we will first know what is it. As you all know that health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. मतलब health तो तब हम एक इंडिविजुअल को हेल्दी बोलते हैं जब उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें हो। अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ डिविएटेड हो या कोई चीज़ एब्सेंट हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजीज़ड है, नहीं, बट ही इज़ हेल्दी, चाहे वो सोशली अनहेल्दी हो, मेंटली अनहेल्दी हो, फिजिकली अनहेल्दी हो, कोई ना कोई चीज़ उसमें ऐसी होती है जो एब्सेंट होती है या डिविएटेड होती है जब हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी। फैमिली हेल्थ। नाउ व्हाट इज़ फैमिली हेल्थ? Family health is a dynamic, changing, relative state of well-being which includes the biological, psychological, spiritual, social and cultural factors of the family system. Family health किसको बोलते हैं? हम कब बोलेंगे family healthy है? Family health जो होता है वो dynamic, changing होता है, सेम नहीं रहते। बच्चों का हालत अलग होता है, बड़ों का, बूढ़ों का, adolescents का, elderly का, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं। So it is dynamic, it is changing. वेलबींग होते हैं लेकिन चेंज तो इन सब में क्या होना चाहिए? बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, ये क्या होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए। इनमें बायोलॉजिकल वेलबींग होना चाहिए, साइकोलॉजिकल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ द फैमिली, सेम कल्चरल फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब एक इंडिविजुअल का अलग, एक फैमिली मेम्बर का अलग अगर होगा तो ये फैमिली हेल्दी नहीं कहलाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फैमिली नर्सिंग। अब हम देखेंगे फैमिली नर्सिंग होता क्या है। इट इज़ द प्रोविजन, जैसे मैंने पहले ही बोला, इज द प्रोविजन ऑफ केयर involving the nursing process to families and family members in health and illness situations. A nurse who works at the client's home. जब हम एक क्लाइंट के होम में उसको केयर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम उसको रैंडमली केयर नहीं देते, हम नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं। नर्सिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस वर्ड इटसेल्फ मीन्स देयर आर द इट इज़ अ सिस्टमिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग केयर, जिसमें हम अलग अलग पहले असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जो दिया, नीड क्या है, हम क्या देंगे, हमने दिया, हमने जो दिया उसका आउटकम क्या है, हमें कुछ और तो नहीं करना। सो इट इज़ अ नर्सिंग प्रोसेस जिसमें हम मेंबर्स, अब जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो हेल्दी हो या इलनेस सिचुएशन में, हम उनको कोई ना कोई केयर, अगर हेल्दी होते हैं तो हमको बोलते हैं कि आप कैसे हेल्दी रहेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे हेल्थ को। अगर इलनेस होगी तो हम उनको बोलेंगे कि हेल्थ को रेस्टोर कैसे किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस फैमिली नर्सिंग? एक्चुअली क्या, व्हाट इज़ द कंसेप्ट? कंसेप्ट है कि असिस्टिंग डेवलपिंग मेंबर्स कमिटमेंट टू हेल्दी लिविंग। हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मदद कर सकते हैं ताकि वो हेल्दी लिविंग जी सके, हेल्दी रह सके। कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद ईच अदर, इंटरेक्शन बढ़ता है। कोप विद मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ कोप अप कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं जब उनको नॉलेज मिलता है, प्रोवाइड उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है, आई कैन अवेल दिस, आई कैन गो हॉस्पिटल, आई कैन गो अदर डिपार्टमेंट। किसी न किसी तरीके से जब उनको हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे वो अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, इमोशनल सपोर्ट उनमें आ जाता है। सर्व एज ए कैटलिस्ट, फैमिली नर्सिंग एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट मीन्स विच एनहेंसेस सम फंक्शन। सो
जब हम उनको एजुकेशन देते हैं उनमें जो कॉम्पिटेंस होती है वो कैटलाइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनमें होल्ड आ जाता है, कोपिंग मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है। सो नाउ types of families, as you already know there are so many types of nuclear families, joint families, single parent families। अब न्यूक्लियर जॉइंट हमें ये क्यों पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फैमिलीज हमें इसलिए पढ़ना, हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज क्या होता है। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती है मदर फादर और उनका एक चाइल्ड या दो बच्चे होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में 2-3 जनरेशन होती है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे, फिर हम हैं, फिर हमारे बच्चे, सो 3-4 जनरेशन्स के। तो ये एक्सटेंडेड बन, या हमारे अंकल होंगे वो हमारे साथ होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो जिस फैमिली, सो जितनी ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली होती है उतना ज़्यादा हमारा रोल बढ़ जाता है। फैमिली नर्सिंग में चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उतनी ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल पेरेंट फैमिली होगी, सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है, एक ही पेरेंट या मदर या फादर जो होता है उनके साथ बच्चे होते हैं। देयर कैन बी सो मनी रीजन कि सिंगल पेरेंट क्यों होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बोला एडॉप्शन करते हैं, दे डोंट मैरी, किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उसको पालते हैं, तो वो सिंगल पेरेंट बन जाते हैं। या किसी का डिवोर्स हो जाता है, या किसी के एक पेरेंट की डेथ हो जाती है। देयर आर सो मनी रीजन ड्यू टू विच पेरेंट इज सिंगल, देयर आर सिंगल पेरेंट फैमिली। सो जो उनके हम प्रायोरिटीज़ होंगी, उनकी नीड्स होंगी, दैट विल बी a little bit different from the blended and extended family। extended family में बहुत सारे members होते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो सिंगल पेरेंट फैमिली में सिंगल पेरेंट होता है, तो चैलेंजेस उनके लिए ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे फैमिली नर्सिंग का ज़्यादा रोल है, उनकी एजुकेशन में, काउंसलिंग में, उनके कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट में। सो ना क्या रोल्स है हमारे एज इन होम फैमिली नर्सिंग, हमारा क्या रोल है? सो वी कैन एक्ट एज हेल्थ टीचर, कोऑर्डिनेटर, कोलैबोरेटर, काउंसलर, कंसल्टेंट, केस फाइंडर एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल मॉडिफायर, फैमिली एडवोकेट। मतलब हम एक टीचर का रोल, जब हम उनको कुछ बोलते हैं तो हम टीचर की तरह बोलते हैं, वो सुनते हैं। कोऑर्डिनेट कोलैबोरेट, कोई ऐसी चीज़ जो हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसा इशू होगा जो हेल्थ सेक्टर हमारे हाथ में नहीं होगा, बियॉन्ड आवर स्कोप होगा। तो एट दैट फॉर एग्जांपल सिंपली मे बी कोई विडो हो फैमिली में जिसको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत, तो हम उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कोलेबरेट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन अवेल दोज फंक्शंस। या काउंसलर, हम काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे ओल्ड एज काउंसलिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग कर सकते हैं, एंटीनेटल, दिस एडोलसेंट डाइट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्ट एज द डिलीवर एंड सुपरवाइजर ऑफ केयर। हम केयर प्रोवाइड डिलीवर भी कर सकते हैं, और जो फैमिली मेम्बर्स खुद देते हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं एज ए सैरोगेट। उनके लिए हम एक सैरोगेट बनते हैं, मतलब उनके लिए रिसोर्स प्रोवाइडर बनते हैं, रिसर्चर। हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं जो कॉमन होती है, हम अगर 2-4 फैमिलीज़ में जाएंगे, देखिए कोई प्रॉब्लम कॉमन है, उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हर एक फैमिली में क्यों है। हम रोल मॉडल्स एक्ट कर सकते हैं, उनके केस मैनेजर, अगर उनका कोई ऐसा केस होगा हम वो मैनेज करेंगे, तो उनके केस मैनेजर्स, उनके लिए केस मैनेज हो जाएगा। सो वी विल एक्ट एज मैनेजर्स। क्लेरिफायर एंड इंटरप्रेटर, मतलब उनको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा, सो वी कैन क्लेरिफाई दैट, वी कैन इंटरप्रेट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोविड-19 है, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मिथ्स है इसके बारे में, बहुत सारी क्योरीज है, तो वी कैन क्लियर दोज क्योरीज, मिथ्स। सो वी एट दैट टाइम वी आर द बेस्ट इंटरप्रेटर फॉर द फैमिली मेम्बर्स। नाउ फंक्शंस, क्या है फंक्शंस फैमिली नर्सिंग के? जनरेट इज अफेक्शन, इससे अफेक्शन जनरेट हो जाता है। प्रोवाइड इज पर्सनल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस, इससे क्या हो जाता है, आपको पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाती है, एक्सेप्टेंस आती है, आपको फैमिली के मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं, वो एक दूसरे को भी एक्सेप्ट, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हम मिल जाता है कि नहीं अब वो चीज़ है, ये चीज़ है, इसको मुझे ये करना है, इसको वो जब उनको नॉलेज मिलता है तो वो सेटिस्फाई होते हैं। एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ कंपेनियनशिप, प्रोवाइड इज प्रोटेक्शन एंड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स लोग सोशल हो जाते हैं, लोगों में शेयरिंग, इंट्रैक्शन, ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती है उनमें, ये वेंटिलेट करने का कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को भी बोलेंगे जो केयर गिवर होगा या उनका कोई
अच्छा रिलेटिव होगा, नेबर होगा, उसके साथ वो शेयर करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, सो दैट एवरीबडी मे बी हेल्प देयर टू हेल्प देम, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई हो, लेकिन उनमें एक सोशलाइजेशन का वो क्या कहते हैं उसको, सोशलाइजेशन आ जाती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये सबको पता है, अगर हम होम नर्सिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे तो ओबियसली इट विल सेव द हॉस्पिटल बेड, ज़्यादा एडमिशन्स नहीं होंगे, चीपर सस्ता हो जाएगा, अपने घर के सैनिटरी हाउस ज़्यादा सैनिटेशन में रहेगा, फास्टर रिकवरी हो सकती है। लेकिन कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी आ, फॉर एग्जांपल हमने फैमिली में कोई प्रॉब्लम देखी, उसके लिए हमें कोई लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन या कोई चीज़ ज़रूरत हो, फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबल लेबॉर्ट्री मशीन टू होम विल बी डिफिकल्ट, हम एक्सरे करना चाहते हैं होम घर में तो पेशेंट लेके जाना पड़ेगा, तो या कोई ऐसी चीज़ है जिसको बार बार हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर सब स्टैंडर्ड हाउस है, घर वाले अच्छे से केयर नहीं कर रहे, प्रॉपर केयर टेकर्स नहीं है, सो दैट कैन डिले द रिकवरी। नाउ what are the different approaches which we can use while providing the family nursing. So first approach is family as a context, family as a client, family as a system, family as a component of society, family as a unit of health. What does this mean? So जब भी आप फैमिली के लिए एक अप्रोच कर रहे हो, फैमिली को एक क्लाइंट समझो, फुल कॉन्टेक्स्ट समझो कि इट इज़ फुल, मतलब जिसका हमें हर एक पहलू जानना है, हर एक चीज़ जाननी है, इट इज़ अ सिस्टम। ये एक इंडिविजुअल की तरह, जिस तरह हम उसको हेड टू टो एग्जामिनेशन करते, कोई चीज़ जानने की कोशिश करते, उसी तरह हमें फैमिली को समझना है, हर किसी कंपोनेंट को समझना है, क्योंकि फैमिली itself is the main important component of society. फैमिली इज ए यूनिट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फैमिली एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ सर्विस का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये चीज़ें हमें, ये अप्रोच हमें यूज़ करना है। अब जब हम कर रहे हैं, हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जब हम फैमिली नर्सिंग दे रहे हैं, जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें प्रिंसिपल्स हमें हमेशा याद रखना है कि एस्टैब्लिश गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जो भी हम, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिन मेंबर्स है, जिस फैमिली के साथ, हमें एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशन, जैसे ज़्यादा पर्सनल नहीं जाना है, मतलब ज़्यादा सिंपैथी नहीं दिखानी है, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जितना आपको जानना है, जितनी आपकी लिमिटेशंस है, जितनी आपकी लिमिट है, अकॉर्डिंगली यू शुड गो। प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देनी, मतलब हम गए कोई भी टॉपिक उठाया और उस पर हेल्थ एजुकेशन नहीं, हेल्थ एजुकेशन शुड बी रिलेवेंट, इट शुड बी नीड बेस्ड, जो उनकी नीड है उसी पे दो, कभी आप उस पे दोगे, कभी आप इस पे दोगे, तो उनको भी लगता है जैसे आप कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सेट प्रायोरिटीज, हमेशा हमें क्या करना है, फैमिली में अगर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हमें हर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन उस चीज़ को देनी है जो चीज़ पहले इंपॉर्टेंट, छोड़नी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंस, पहले प्रायोरिटाइजेशन उन प्रॉब्लम्स को देनी है जो इंपॉर्टेंट होती है, जिनको ज़्यादा नीड की ज़रूरत होती है। नीड बेस्ड सपोर्ट एंड सर्विसेज, जो मैंने आपको बोला, जो नीड बेस्ड है, नीड बेस्ड सपोर्ट दो, अननेसेसरी रैंडम मत दो, सर्विस स्टॉल हर किसी को दो, कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ केयर मेंबर्स, अगर आपको लगता है कि आपको किसी और मेंबर की ज़रूरत, कभी कभी कोई और, फॉर एग्जांपल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी मेंबर, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फैमिली नर्सिंग जो है, फैमिली सर्विसेज जो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड करो। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो हेल्थ सेक्टर है, एक एलोन पॉसिबल नहीं, इट इज़ अ टीम वर्क। इस टीम वर्क मीन्स एक से ज़्यादा मेंबर्स जब मिलते तब जाके हम केयर प्रोवाइड कर पाते। एक सिंगल इंसान, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक हेल्थ पर्सनल है, वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट नहीं हो, प्रॉपर लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन ना हो, रिपोर्ट्स ना हो, सो इट इज़ अ टीम वर्क। नाउ रेंज ऑफ फैमिली नर्सिंग सर, कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज हम फैमिली में, थेरापेटिक सर्विसेज, प्रोग्नोस्टिक सर्विसेज, प्रॉपर नर्सिंग केयर एंड एजुकेटिव, मतलब जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला, हम थेरापेटिक दे सकते हैं, किसी चीज़ की थेरापेटिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, या कुछ प्रोग्नोस्टिक जिससे रिकवरी हो जाए, जिससे प्रोग्नोसिस इम्प्रूव हो जाए, जल्दी जल्दी से रिकवर। प्रॉपर नर्सिंग केयर, डायरेक्ट नर्सिंग केयर, हम प्रोसीजर करेंगे कोई जिससे हमें लगेगा कि फैमिली को नीड है इस प्रोसीजर की, हम वो डायरेक्ट नर्सिंग केयर देंगे। एजुकेटिव, एजुकेटिव में एजुकेशन रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल कॉमन है हमारे कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक में, क्या है आजकल बहुत ज़्यादा जो है फ़ोन पे, मीडिया पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे क्या आते हैं,
एजुकेटिव लेक्चर्स आते हैं, एजुकेटिव सेशंस आते हैं, आप हैंड वॉशिंग करो, स्टे होम, स्टे सेफ. व्हाट इज दिस? इट इज एक्चुअली a mode of education. Then we can act as counseling. We can do the counseling, social assistance, family diagnosis. Counseling मैंने already explain किया. Counseling can be done to elderly, old age, child, breastfeeding mothers, preemie mothers, adolescent girls. There are so many. There is a vast scope of counseling in the family. Social assistance, family diagnosis. We can socially assist. We can give them the सोशल असिस्टेंस. ग्रुप्स में कोई ऐसे, जैसे फैमिली को कोई नीड हो, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा ग्रुप हो जिनको सेम प्रॉब्लम हो, हम उनकी एग्जांपल देके हम उनको सोशल असिस्टेंस दे सकते हैं, या बहुत सारी सोशल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू सोशल वर्कर्स. फैमिली डायग्नोसिस. फैमिली को कभी कभी क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता प्रॉब्लम क्या है हमारी फैमिली में. एक्चुअली उनको समझ नहीं आता है, फैमिली में क्राइसिस होते हैं लेकिन समझ नहीं आता. तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे उनको बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली में क्या है, आपके बच्चे छोटे हैं, ये अंडरवेट है, माल नरिशड है, जो आपकी मदर्स है वो लैक्टेटिंग है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है. सो उनको समझ आ जाएगा कि हमारी, इसलिए मॉर्बिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है. मॉर्बिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो ज़्यादा इकोनॉमिकल इश्यूज हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहे हैं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लेन. So this was about the family nursing. Hope you have understood the family nursing. Now I will give you a little bit information, as there is not much difference between home nursing and family nursing, but still I will give a little bit information, a comparison between the home nursing and family nursing. Now, as you have understood family nursing, what is that? Now I will tell you about the home nursing. What is home nursing? So yes, what is home nursing? होम नर्सिंग मैंने आपको पहले ही बोला. होम नर्सिंग भी हम क्लाइंट के रेजिडेंस में देते हैं, उसके घर में देते हैं, उसकी होम सेटिंग में देते हैं, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड केयर, कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जनरल नहीं होता है. इसमें कोई स्पेशलाइज्ड पर्पस होता है, ऐसे ही हम नहीं जाते हैं. तो होम नर्सिंग में क्या होता है, पेशेंट कभी कभी डिस्चार्ज होता है, उसको लिख के होता है कि आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट वीक में 3 बार विजिट करेगा. सो it is specialized care. A physiotherapist will come or a speech therapist will come. So there is a specialized care which is mentioned, specialized. It is not general care, which is not general education, but it is specialized care. समझ आया? You got the concept? Okay. So home nursing, definition of home nursing is defined as the delivery of specialized nursing care services in the home health care settings. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. होम नर्सिंग का मतलब है जब हम डिलीवर करते हैं स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विसेज इन द होम हेल्थ केयर. पेशेंट के होम हेल्थ केयर सेटिंग में, घर में होता है, बीमार होता है, किसी स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर की उसको ज़रूरत होती है, वो बार बार हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकता है, या हॉस्पिटल ने उसको अलाउ नहीं किया होता है कि वो बार बार हॉस्पिटल विजिट करे. देयर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से नहीं अलाउ करते. फॉर एग्जांपल आई विल गिव एग्जांपल ऑफ कैंसर पेशेंट्स. बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिर हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, मतलब उनका जो ट्रीटमेंट हुआ वो ओवर हुआ होता है, दे लास्ट स्टेज में होते हैं. तो उनमें कोई ऐसा प्रोसीजर होता है, ऐसा कोई केयर होता है जो जिसकी उनको ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसीजर ऐसा जिसकी ज़रूरत उनको होती है, वो खुद नहीं कर सकते, या उनको बीच बीच में सुपरविजन की, उस टाइम हम स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर देते हैं. ठीक है. सो द डेफिनेशन अगेन इज अकॉर्डिंग टू वरहोला, होम हेल्थ केयर इज दैट, प्लीज concentrate on this. Home health care is that component of a continuum of comprehensive health care. Comprehensive health whereby health services are provided to individuals and families in their places of residence for the purpose of promoting, maintaining or restoring health
और मैक्सिमाइजिंग द लेवल। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनका हेल्थ हम प्रमोट करते हैं, मेंटेन करते हैं, और हमारा जो मेन एम होता है, जो उनकी लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरों पे, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली उनकी सफरिंग को, उनकी हेल्थ को हम रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट उनका जो हेल्थ है वो रेस्टोर हो जाए और ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे उनमें, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होम केयर नर्सिंग? होम नर्सिंग की, it can be transitional, it can be home based primary care, population focused home care, home health, hospice। सिंपली कभी टेम्पररी हो सकता है, किसी को कोई स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत, फॉर एग्जांपल सर्जरी कोई ऐसी होगी उसको ड्रेसिंग की ज़रूरत है, ठीक है, होम ड्रेसिंग की, उसको हॉस्टल में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उसको डिस्चार्ज करके आप घर में ही करा लो, तो उसको ट्रांजिशनल 8 या 9 डेज तो ख़त्म। होम बेस्ड प्राइमरी केयर मतलब किसी को प्राइमरी केयर की ज़रूरत होती है, प्राइमरी जो, ताकि अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे फोकस होता है कभी, जिसमें हम होम नर्सिंग दे, फॉर एग्जांपल लैक्टेटिंग मदर्स, या किसी एरिया में किसी पॉपुलेशन में ज़्यादा मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट हो, तो वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज द जनरल ओवरऑल रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन होम नर्सिंग? एज यू नो, मैंने आपको बहुत बार बोला है, जो भी आप करते हो उसका हमेशा एक रिकॉर्डिंग रखो। कीप ए रिकॉर्ड व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हो और आपने क्या किया। सो रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड केयर, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, रिलेटेड केयर प्रोवाइड करो। अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेट नर्सिंग प्रोसीजर, पहले खुद करो, उनको दिखाओ, तब जाके वो करेंगे। मेडिसिन आप दे सकते, लेकिन एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, जिस मेडिसिन को देने की इजाज़त है उसी को दो, अननेसेसरी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब मत करो। सुपरवाइजर नर्सिंग प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाई अगर फैमिली कोई नर्सिंग प्रोसीजर दे रहा है, हमने उनको सिखाया, लेकिन उसको पहले सुपरवाइज करो। क्रॉनिक इलनेसेस में फॉर एग्जांपल मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको मदद करना है, उनको सपोर्ट करना है। पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल जाने की, वापस आने की, उनको बैक ड्रॉप फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये सब कुछ मतलब ओवरऑल हमें जनरल वो चीज़ें करनी है जिनका कोई साइंटिफिक बेस हो। ऐसे ही नहीं होता है रैंडमली हम कुछ भी करेंगे। इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी सिस्टमेटिक। दिस वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक, family nursing and home nursing. Hope you have understood this topic. This topic is usually included in the syllabus of medical assistant first years and I think FMPH first year. So kindly refer to our syllabuses and consult this lesson. If you have any query or question, we can discuss it later when we will join the college bar. Okay, Allah Hafiz.